हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मिसेस मैविशकिल और आप सब देख रहे हैं मेरा चैनल एमएस लर्निंग अकेडमी। मेरे इस चैनल में आप सबका बहुत 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 वेलकम। वीडियो को देखने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप एवरीवन इज़ फाइन। मैं हूं आपकी होस्ट मिसेस नेविशकिल और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं एक नया चैनल जिसका नाम है एमएस लर्निंग अकेडमी। इस चैनल में मैं आपको सिखाऊंगी कुछ मैथ्स के इंटरेस्टिंग आइडियाज़ और साथ में आपको पढ़ाऊंगी स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रेड 6। आज हम पढ़ेंगे अबाउट सेट्स। सेट्स इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज़ अ सेट, दैट मीन्स द डेफिनेशन ऑफ अ सेट। देन हम देखेंगे what is meant by distinct, उसके बाद हम देखेंगे what is meant by well defined, then what is the notation of a set. So these are all the points which we are going to discuss today. ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो आज हमने डिस्कस करने हैं. व्हाट इज अ सेट, व्हाट इज meant by distinct, what is meant by well defined, and what is the notation of a set. So students, starting from the first question, that what is a set, we will see the definition of a set. Set means a collection of distinct and well defined objects is called set. This is the definition of the set. A collection of distinct and well-defined objects is called a set. Collection means cluster of things or too much things together. Then what is the meant by distinct? Our second point is what is distinct. Distinct means different. That every element in a set should be different from another element. Now, what is an element? All the objects present in a set are called its elements. For example, now students, I will give you an example and you will understand more clearly. Example. If I write a set of vowels,
vowels. Vowels. All of you very well know about vowels. A, E, I, O, U. These are called the vowels. You can see that this element is A, this element is E, the next element is I, then O, then U. All the elements are different from each other. Not a single element in this set are same. All the elements are different. So these are called sets. Now what I have written over here, A equal, and then I have used these brackets. These brackets are used for its notation, and the set is denoted by capital alphabets A, B, C, D, or any other capital alphabet and so on. These are called the notations of a set. Notations. That how we can denote a set by using bracket and the alphabets A, B, C, D up to so on, any alphabets. Another example is if I write n equals to set of natural numbers. Now, what are natural numbers? All the numbers that start from 1. 1, 2, 3, 4, 5, up to so on. These are called natural numbers, and I will write the brackets from its start and end point and the letter, and that is capital letter. This is the donation of a set, and equals to 1, 2, 3, 4, up to so on. There is another example, that is E equals set of even numbers. Set of even numbers. Even numbers कौन से numbers होते हैं? Numbers that are divisible by 2. Even numbers. The numbers that are divisible by 2 are known as even numbers. Now, how you can find the even number? For example, I said 4. Is 4 divided by 2? Yes, 4 is divided by 2. The answer is 2. So, it is divisible by 2. So, 4 is an even number. 4 is an even number. Or you can say the multiple of 2. Every number that is a multiple of 2 is an even number. So, I will write here equals 2, 4, 6, 8, 10, up to so on. These are even numbers, and this is a set of even numbers. This is a set of even numbers. So you can see in all these examples that all the elements in these sets are different. Not a single element is repeating. So this is the definition or the set. Okay, now next is well defined. What is well defined? Well defined means well defined means that you should know about each element. For example, in previous example number 1, set of vowels. Here you can see A, E, I, O, U. These all, these are the set of alphabets, small alphabets, and these are vowels. In second example, set of natural numbers, you very well know that these numbers are natural numbers. You have well defined
we have defined these numbers that these are natural numbers and even numbers. So every element know what are every elements, कि आपको पता होना चाहिए कि हर एलिमेंट किस तरह का है. तो आपको पता होना चाहिए कि सारे जितने भी एलिमेंट्स आएंगे किसी भी सेट के अंदर वो किस तरह के हैं या क्या है. फॉर एग्जाम्पल अब मैं कुछ सारे एग्जाम्पल्स लिखूंगी, आप उनको देखेंगे. एग्जाम्पल्स, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रही हूँ. ए इक्वल्स 1 2 3 3 4 1. ये मैंने एग्जाम्पल राइट किया है बच्चों. तो इसमें अब आप मुझे ये बताएं कि क्या ये दोनों शर्तें जो सेट की हैं वो पूरी कर रहे हैं. सेट की दो ही शर्तें हैं. फर्स्ट वन इज द सेट शुड बी डिस्टिंक्ट, द एलिमेंट्स इन एवरी सेट शुड बी डिस्टिंक्ट. ये इसकी पहली शर्त है कि हर एलिमेंट जो है वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए अगर वो सेट है. और दूसरी शर्त ये है कि वो वेल डिफाइंड भी हो. द एलिमेंट्स इन अ सेट शुड बी वेल डिफाइंड. अगर ये दोनों शर्तें पूरी ना हो तो वो सेट नहीं होता. अब आप ये एग्जाम्पल देखें. ए इक्वल टू 1 2 3 2 4 1. ये मैंने एग्जाम्पल लिखी है. इसमें आप जो ये बताएं क्या इसके सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं. अब आप ये सोचें तो इसके सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट नहीं है. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 जो है वो रिपीट हो रहा है. 1 इज रिपीटिंग 2 टाइम्स, देन 2 इज रिपीटिंग 2 टाइम. तो इसके एलिमेंट डिस्टिंक्ट तो ना हुए. दिस इज नॉट अ सेट. ए इज नॉट अ सेट. ये सेट क्यों नहीं है? क्योंकि इसके सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट नहीं है एक दूसरे से. हमारे सेट की शर्त ही पहले ये है कि इसके सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? डिस्टिंक्ट होने चाहिए. इसके बाद आगे एग्जाम्पल लिखते हैं. V equals to B A N K. I have written another set over here. B equals to B A N K. अब हम पहले इसकी शर्त देखते हैं डिस्टिंक्ट वाली. क्या इसकी डिस्टिंक्ट वाली शर्त इसकी कंप्लीट हो रही है? B A N K. कोई एलिमेंट इसमें ऐसा है जो रिपीट हो रहा है? नहीं, ऐसा इसमें कोई एलिमेंट नहीं है जो रिपीट हो. तो ये सेट है वेल डिफाइंड. वेल डिफाइंड का मतलब कि हमें पता होना चाहिए कि पूरा सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है वो क्या है. तो ये आपको नज़र भी आ रहा है BANK. ये एक नेम बन रहा है बैंक. तो बैंक मीन्स कि ये वेल डिफाइंड सेट है जिसमें हमें पता चल रहा है कि इसके एलिमेंट्स जो हैं वो एक नेम को शो कर रहे हैं, दैट इज बैंक. सो दिस इज द सेट. B इज अ सेट. अब हम इसमें देख लेते हैं बिलोंगिंग्स. बिलोंगिंग्स कैसे हम बिलोंग करते हैं किसी भी सेट को. अब मैं यहाँ से अब एक उठाती हूँ एलिमेंट. इसका इनको एलिमेंट्स कहा जाता है. जो सेट के अंदर हम ऑब्जेक्ट्स राइट करते हैं ना, ये एक नोट है, ये आप नोट कर लें. नोट है दैट द एलिमेंट्स और द ऑब्जेक्ट्स ये ऑब्जेक्ट्स ही कहला रहे हैं ना. हमने क्या डेफिनेशन, अभी हम इसकी डेफिनेशन दे रही थी. दोबारा क्या डेफिनेशन लिखी थी? अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. अब इसमें आप ये देख लें, कलेक्शन है, ये कलेक्शन है ना अल्फाबेट्स की. कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट. डिस्टिंक्ट मीन्स एवरी एलिमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम ईच. डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड. वेल डिफाइंड भी है. ऑब्जेक्ट्स, ये इसके सारे क्या है? ऑब्जेक्ट्स. इनकी कलेक्शन क्या कहलाती है? सेट कहलाती है. तो इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं एलिमेंट. द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेट आर कॉल्ड इट्स एलिमेंट्स. इनको क्या कहा जाता है? एलिमेंट्स. जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको एलिमेंट्स कहा जाता है. तो इसमें अगर मैं एग्जांपल एक राइट करूँ, फॉर एग्जांपल A इक्वल्स टू AEIO. ये मैंने लिखी है सेट ऑफ वॉवल्स. और ये सेट है क्योंकि इसका हर एलिमेंट इससे एलिमेंट से डिफरेंट है. अब मैं हर सेट के जो एलिमेंट्स है ना, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको एलिमेंट के नेम से बोलूँगी. तो आपने ये समझ जाना है कि उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके नेम बोल रही हूँ मैं. अब मैं यहाँ पे राइट करती हूँ ई क्या है? इसका एलिमेंट है. तो मैंने इसको सिंबल फॉर्म में राइट करना है, सिम्बॉलिक फॉर्म. किस फॉर्म में राइट करना है? सिम्बॉलिक फॉर्म में मैंने राइट करना है इसको. सिम्बॉलिक फॉर्म.
तो सिंबॉलिक फॉर्म में ये कैसे आएगा, ई, ये इसका सिंबल होता है एलिमेंट का, दिस इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट, इसको हम इस तरह से लिखते हैं एलिमेंट, ये ऐसे इस तरफ ये इसका सिंबल होता है ई, जो मैंने ऑब्जेक्ट उठाया एलिमेंट उठाया, इज एन एलिमेंट ऑफ सेट कौन सा हमारे पास, ए, सो ई इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए. नाउ इन प्रीवियस एग्जाम्पल्स वी हैव रिटन E is equals to 2, 4, 6, 8 up to so on. These are set of even numbers. These are what called set of even numbers. तो set of even numbers में अब मैं इसको symbolic form में कैसे राइट कर सकती हूँ. For example, I want to write 6. So 6 is an element of set E. Set अब कौन सा है, E है, इसका एलिमेंट मैंने क्या उठाया है 6, तो मैं इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे राइट करूँगी, 6 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ई. नाउ इफ़ आई वांट टू राइट ओवर हियर, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ 7, तो क्या आपको इस सेट में 7 नज़र आ रहा है कहीं पे बच्चों, 7 सेट में नहीं है, तो मतलब सी इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ई. जो 7 है वो सेट ई का एलिमेंट नहीं है, तो मैं इसको कैसे लिखूँगी सिंबॉलिक फॉर्म में, इसी तरह से मैं लिखूँगी जैसे एलिमेंट लिखा जाता है, इसके दरमियान में लगा देंगे लाइन इस तरह से, इसका ये मतलब होता है कि नॉट एन एलिमेंट, 7 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ई, कि 7 जो है वो सेट ई का एलिमेंट नहीं है, तो इसको इस तरह से राइट किया जाएगा. तो ये इस तरह से हम इनको राइट करते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में किसी भी सेट को. एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग ओवर हियर O equals to 1, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन. ये जो मैं डॉटेड फॉर्म लगा रही हूँ डॉटेड लाइन्स, इसका ये मतलब होता है कि ये जो एलिमेंट, ये जो हमारे पास नंबर्स है ये स्टॉप नहीं करते, ये इनफाइनाइट नंबर्स है. इनफाइनाइट मीन्स कि ये चलते जाते हैं, इट्स नेवर स्टॉप, ये कभी भी स्टॉप नहीं होते, तो इसलिए हम इसकी ये लाइन्स यूज़ करते हैं. ठीक है, तो अब ये है ऑड नंबर्स. क्या है ये, ऑड नंबर्स. ऑड नंबर्स अब कौन से नंबर्स होते हैं, अच्छा ये नंबर्स पे मैं अब आपको ना एक पूरी डिटेल वीडियो दिखा दूंगी कि ये नंबर्स कौन से होते हैं. नेचुरल नंबर्स हो गए, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये सारे नंबर्स होते हैं. तो इसमें मैं आपको ज़्यादा से ना वीडियो बना के दिखा दूंगी. अभी मैं आपको बता देती हूँ ऑड नंबर्स क्या होते हैं. ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं करते, या जो 2 के टेबल में नहीं आते, दैट आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ 2, दैट आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ 2. इनको क्या बोला जाता है, ऑड नंबर्स बोला जाता है. तो ये मैंने एग्जाम्पल राइट की है, O equals to 1, 3, 5, 7 up to so on. This is also a set of odd numbers, set of odd numbers. तो इसमें अब मैं इसको सिंबॉलिक फॉर्म में राइट करने जा रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू से 5 and I want to write it belongs to set O. So what will the symbol? This is the symbol belongs or element of set O. सेट कौन सा है हमारे पास, O है, उसका कौन सा एलिमेंट उठाया है 5, और यही हमने यूज़ किया है सिंबल, दैट इज एन एलिमेंट ऑफ. इसको सिर्फ एलिमेंट ऑफ ही नहीं कहा जाता है, इसको कहते हैं एलिमेंट ऑफ, और वी कैन ऑल्सो से इट बिलोंग्स टू. इसको ये भी कहा जाता है कि 5 बिलोंग्स टू सेट O और 5 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट O. इसको ये भी कहा जा सकता है. ठीक है, तो इसके ये दो नाम है, 5 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट O और 5 बिलोंग्स टू O. वी कैन ऑल्सो से 7 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट O और 7 बिलोंग्स टू O. कैन आई से 8 बिलोंग्स टू O. क्या मैं ये कह सकती हूँ कि 8 जो है वो सेट O का एलिमेंट है. तो या यहाँ से आप देख सकते हैं क्या इस सेट के अंदर 8 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो वी विल से 8 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट O. हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे, नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट O. सो ये मैंने आपको दिखा दिया शुरू. अब हम इसके बाद रिवाइज कर लेते हैं अपने सारा जो हमने लिखे हैं. फर्स्ट हमने क्या देखा था, व्हाट इज अ सेट. सेट क्या होता है, अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट. जिसमें डिस्टिंक्ट हमने देखा था, डिस्टिंक्ट क्या होता है, डिफरेंट, के हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट हो. उसके बाद हमने वेल डिफाइंड का भी देख लिया और नोटेशन का देखा उससे पहले कि नोटेशंस क्या होती है, हम किस तरह से सेट को डिनोट करते हैं. सेट को डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर यूज़ किया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू यूज़ द कैपिटल लेटर्स A B C D, एनी लेटर यू कैन यूज़.
उसके दरमियान में कोई क्या आना चाहिए, इक्वल साइन, और ब्रैकेट्स के अंदर हम क्या लिखते हैं, सारे उसके ऑब्जेक्ट्स या उसके एलिमेंट्स को लिखा जाता है। और मैंने आपको बताया कि उसके सारे ऑब्जेक्ट्स को ही उनके एलिमेंट्स लिखा जाता है, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स हम लिखते हैं ये स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, कैपिटल लेटर्स में इनको नहीं लिखा जाता। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल कोड की थी जिसमें मैंने इनको कैपिटल लेटर में बाय मिस्टेक लिख दिया था, लेकिन आपने इनको कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखना, एलिमेंट्स हमेशा स्मॉल लेटर्स में ही आते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने नेचुरल नंबर्स की देखी। नेचुरल नंबर्स जितने भी नंबर्स हैं ना, ये मैंने आपको बताया कि पहले ही इनकी वीडियो में आपको डिटेल में बाद में दिखा दूँगी, ठीक है। उसके बाद में कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये सारे नंबर्स के बारे में, ठीक है। तो फिर आपने एग्जांपल्स के अंदर देख लिया है कि नेचुरल नंबर्स में भी जितने भी एलिमेंट्स आए सबके सब क्या थे, डिस्टिंक्ट से और वेल डिफाइंड। उसके बाद सेट ऑफ वॉवल्स में भी सारे डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड थे। उसके बाद अगर हमने देखे हैं सेट ऑफ इवन नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं जो कि 2 से डिवाइड होते हैं या फिर जो 2 के टेबल में आते हैं, उनको इवन नंबर्स कहा जाता है। वो भी सारे के सारे क्या थे, डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड थे, ठीक है। फिर हमने वेल डिफाइंड देख लिया। वेल डिफाइंड का मतलब कि आपको हर एलिमेंट का पता होना चाहिए कि वो कौन सा एलिमेंट है, ठीक है। ये ना हो कि आपको एलिमेंट का पता ही ना हो कि ये कहाँ से आ गया। उसके बाद हमने एक और एग्जाम्पल देखी थी जिसमें हमने देखा था कि कुछ सेट नहीं है और वो नहीं है, ये भी हमें पता चल गया था कि इसका हर एलिमेंट जिससे एलिमेंट डिफरेंट नहीं था। जैसे 1 जो है वो ट्वाइस आ गया, 2 भी ट्वाइस आ गया, तो ये डिस्टिंक्ट ना होगा, ठीक है। इसका हर एलिमेंट डिस्टिंक्ट ना होगा, ये सेम सिमिलरिटी आ जाएगी तो वो सेट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद एक भी अगर डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड में से अगर एक भी चीज़ जो है वो नहीं होगी ना तो वो सेट नहीं होगा। दोनों चीज़ें होंगी तब जाके वो सेट होगा। तो अगर एक ही चीज़ नहीं है तो दूसरी चीज़ देखने की जरूरत ही नहीं है, हमें यही पता चल जाएगा कि ये सेट नहीं है। फिर इसके बाद हमने एक और एग्जाम्पल कोड की थी, बी इक्वल्स टू बैंक। इसमें हमने देखा था कि हर एलिमेंट जो था वो पहले वाले एलिमेंट से डिफरेंट था, तो ये सेट था। इसमें ये डिस्टिंक्ट भी था ये, और इसके अलावा वेल डिफाइंड था। वेल डिफाइंड कैसे था कि ये एक नेम शो कर रहा है जिसका क्या नाम है, बैंक डिफाइंड। तो ये दोनों इसकी शर्तें पूरी कर रहा था सेट की, ये सेट था। हमने बिलोंगिंग्स के बारे में देख लिया, सेट को नोटेशन देख लिया। अब हमने क्या इसके सिंबॉलिकली कैसे इसको राइट कर सकते हैं कि अगर कोई एलिमेंट हमने दिखाना है कि वो किसी भी सेट का एलिमेंट है तो हम इसको सिंबॉलिकली कैसे राइट करते थे, ई। जैसे वॉवल्स के अंदर ई आ रहा है तो ई जो है वो सेट ए का एलिमेंट है, हम ऐसे राइट करते थे, ई इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। इसी तरह इवन नंबर्स एग्जाम्पल में से हमने देखा 6 जो है वो इस ई सेट का एलिमेंट है, तो हमने राइट किया 6 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ई। या फिर हम इसको लिखते हैं 7 क्योंकि इस सेट के अंदर नहीं है तो हम इसको क्या राइट करेंगे, 7 इज नॉट। ये जो है वो नॉट के लिए यूज होता है एलिमेंट, और ये एलिमेंट के लिए यूज होगा, तो 7 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ई। के बाद हमने देखते थे एक और एग्जाम्पल ऑड नंबर्स की। ऑड नंबर्स कौन से नंबर्स होती हैं जो कि 2 पे डिवाइड नहीं होते, दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 2 और दैट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2। तो इसमें भी हमने ये एग्जाम्पल देखी थी। इसमें हमने 5 को लिए, तो 5 जो है वो एलिमेंट था सेट का ओ का, तो हमने इसको क्या राइट किया था, 5 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ओ। फिर 7 भी था, 3 भी है, 1 भी। इस तरह आप इन सब के एलिमेंट की भी राइट कर सकते हो कि ये सारे इसके एलिमेंट्स हैं। लेकिन 8, क्योंकि इस सेट के अंदर हमें 8 नज़र नहीं आ रहा, सो हम इसको कहते हैं कि 8 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ओ। तो ये आज की हमारी वीडियो थी, इसलिए आपका फैसले आगे बता दिए। नेक्स्ट हम जो अपनी वीडियो है उसमें मैं आपको दिखाऊंगी 1.1 एक्सरसाइज सॉल्व करके, ठीक है। तो इसको हम पहले रिवाइज करेंगे, उसके बाद जाके इसको सॉल्व करवाओगे, ठीक है। तो आपने ये चीज़ें याद रखनी है, एलिमेंट और नॉट एन एलिमेंट, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं वो नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज में यूज होंगी। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।